Hey guys, welcome back to my YouTube channel Learn Knowledge. So today we will study about motion, chapter motion. And friends, basically I am covering this chapter, I am explaining this chapter from Lakshmi Singh. I'm not taking NCERT or any other reference book because in my opinion Lakshmi Singh provides the best explanation. So let's begin with chapter 1, motion. So, friends, let me ask you a question. When you see a school, a factory, telephone poles, and roads, from your observation, may I ask you to consider these objects under motion? Can we say that they are showing motion? The answer is no, because they remain fixed at a particular place. They are stationary objects, they do not change their position. Similarly, if I ask you to observe a cheetah running in the field, cars moving on the road, or birds flying in the sky, and based on these information, if I ask you to classify them under motion or not, then you will be easily able to classify them as in motion, because they are changing their speed, they are changing their position continuously. So let's go to the definition of motion, which is as follows. A body is said to be in motion or moving when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point. Friends, it is very important for you to keep in mind this definition. So move on to the next page. So now I am taking an example to make this point more clear to you. Wait a minute. तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हो इस सी फिगर नंबर 2. तो अगर आप देख रहे हो कि ये है कार नंबर ए. अब हमने इस फिगर में कार के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिया है हाउस और ट्री. सो फ्रेंड्स, आफ्टर 5 सेकेंड द कार रीचेज हेयर पोजीशन बी. car reaches position B. So how do we classify कि अब हम इसको देख के आराम से कह सकते हैं कि हाँ भाई कार तो मोशन में है. तो हमने ये क्लासीफाई कैसे करा? ये हमने विथ रेफरेंस टू दी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्लासीफाई करा. हम लोगों को पता चल गया कि जब कार ए पोजीशन पे थी तब ये हमारे बिल्कुल सामने थे, और जब कार बी पोजीशन पे पहुंच गई तो दे लेफ्ट बिहाइंड. तो हमने अपनी कार के मोशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चूज करा, जो कि था आपका ट्री और हाउस. सो किसी भी बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए वी ऑलवेज नीड अ रेफरेंस पॉइंट. मेक दैट पॉइंट वेरी क्लियर इन योर माइंड. ओके, नाउ in order to study the motion of bodies further, you should know the meanings of two prominent terms used in physics, that is distance and displacement. Friends, यूजुअल लाइफ में लोग डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट को एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट फिजिक्स में इनका टोटली सेंस अलग होता है. दे हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग. So let's understand what is the distance. First, understand what is the distance travel. Let's move on to the definition first. The distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body, irrespective of the direction in which the body travels. What is it saying? Suppose that your body is moving. Suppose that आप लोग एक पोजीशन पे हो ए पे, ठीक है, और आपने ये ट्रैवल करा, आपने बी तक ट्रैवल करा 8 किलोमीटर. ओके फ्रेंड्स, आपने बी तक ट्रैवल करा 8 किलोमीटर. फिर आप अपने सी पर आए, फिर आपने इसके बीच में ट्रैवल करा 2 किलोमीटर, और फिर आप अपने ए पॉइंट पर दोबारा वापस आ गए. आपने इसमें कितना ट्रैवल करा? आपने इसमें भी 2 किलोमीटर ट्रैवल करा. सो अगर हम आपसे पूछेंगे कि आपने मतलब आपकी बॉडी ने आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा,
So it will come out as 8 plus 2 plus 2, that is 12 kilometer. Okay friends, this is the let us go to the definition once again. What the definition says that distance traveled by a body is the actual length. जो हमने ये जो हमारा पाथ है इसकी एक्चुअल लेंथ होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन. अब हमने यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड क्यों यूज़ करा है ये आप लोग समझोगे जब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ोगे. ओके, आई होप दैट द टर्म डिस्टेंस इज वेरी क्लियर टू यू. let's move on to the displacement. Okay, so moving on to the displacement, we should first go to the definition. When a body moves from one position to another, the shortest straight line distance between the initial position and final position of the body along with direction is known as its displacement. अब ये कहना क्या चाह रहा है भाई, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा. लेट मी मेक क्लियर टू यू. अब देखो फ्रेंड्स, हमने जैसे हम लोग ए पोजीशन पे हैं. लुक एट टू दिस फिगर. इस फिगर को देखिए. आप ए पोजीशन पे थे, आप ए टाउन में थे, आपने डिस्टेंस ट्रैवल करा और आप पहुंच गए बी पर. अब आपने जो ये पाथ चूज़ करा इसकी लेंथ थी 25 किलोमीटर. तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डिस्टेंस. ठीक है, बट इसमें क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी. इनिशियल पोजीशन क्या थी, टाउन ए. फाइनल पोजीशन क्या थी, टाउन बी. इसके बीच में जो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये कितना मेजर कर रही थी आपका, ये मेजर कर रही थी 10 किलोमीटर. सो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विद डायरेक्शन. डायरेक्शन हमारी बहुत मायने करती है डिस्प्लेसमेंट में. ये अगर जैसे ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपकी नॉर्थ में है. ओके, सॉरी, ये आपकी ईस्ट में है. ओके, सो अगर हम लोग पूछेंगे कि अगर मान लो मैं आपको लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस डायग्राम ओनली. इफ आई आस्क यू what is the distance traveled by the car in this figure, tell me the distance. So you will easily be able to answer that the distance traveled is 25 kilometer, because it is the length of the actual path covered by the body between 2 points. Okay, and if I ask you displacement, then what? Then the answer is इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ कितना मेजर करता है, 10 किलोमीटर. सो इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द बॉडी फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी. आई होप आई एम क्लियर विद दीज टू टर्म्स. now let me tell you about two more different terms used in physics. सो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये जो टर्म्स यूज़ करते हैं इनको फिज़िक्स में कहा जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़. ओके, तो अब हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. एक होगा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होगा वेक्टर क्वांटिटी. सो अब भाई ये क्या बला आ गई, तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू. डिस्टेंस जिस क्वांटिटी के बीच में, मतलब जिस भी क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब व्हाट इज मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. मतलब डिस्टेंस का फिजिकल क्वांटिटी क्या है, 25 किलोमीटर. ओके, जिस भी क्वांटिटी में सिर्फ डिस्टेंस आता है, रिमेंबर सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, इट हैज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी. और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ नो डायरेक्शन. नाउ अब अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है. नाउ लेट मी टेल यू, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज शोन बाय अ स्पेसिफिक डायरेक्शन.
डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा डायरेक्शन होती है, इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जिस भी बॉडी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ हैं वो आपकी कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। So displacement is a vector quantity and distance is a scalar quantity. Okay friends, let's move on to the next topic. That is, friends, let me read this statement. The distance traveled by a moving body cannot be zero, but the final displacement of a moving body can be zero. So what does this statement ये स्टेटमेंट हमसे क्या कहना चाह रही है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ये लेट लुक ऑन टू दिस डायग्राम ए. इसमें आपकी बॉडी, इसमें एक बॉडी है, वो ट्रैवल करती है, ए से लेकर बी तक ट्रैवल करती है, बी से सी ट्रैवल करती है, फिर सी से ए दोबारा अपनी ए ट्रैवल कर लेती है. तो इसमें डिस्टेंस क्या हो गया? 5 + 3 + 4 एंड दैट इज 12 किलोमीटर. ठीक है. और हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. अब इसमें तो स्टार्टिंग पोजीशन भी ए है और एंडिंग पोजीशन भी ए है, क्योंकि ये घूम फिर के वापस ए पे आ गए. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. सो फ्रेंड्स, मेक श्योर, ये कभी कभी MCQ एंड फिलॉस में आ सकता है क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट की हम वैल्यू 0 हो सकती है, बट डिस्टेंस ट्रैवल कैन नॉट बी 0. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. In today's video we will discuss only till here we will discuss. In the next video I will carry this lesson further more. So friends, thanks for watching this video. Please do subscribe, press the subscribe button, bell icon to get the latest video updates. Share with your friends to help them out with the physics, and if you like this video then press the like button too. Thank you.